State with reasons whether the following statements are true or false. अभी reason बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, एक लाइन दो स्टेटमेंट enough, more than enough. एक मार्क, 2 मार्क का होता है, एक ट्रू और फॉल्स का मार्क होता है, 1 मार्क रीजन का, तो 1 मार्क के लिए ज्यादा कुछ खास जरूरत नहीं है. अक्रूवल कंसेप्ट इंप्लाइज अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस. अक्रूवल कंसेप्ट इंप्लाइज अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस. ट्रू और फॉल्स? False, sir. Time base. Accrual Earned and basis. incurred. Accrual. Earned and incurred basis, yeah, accrual basis. Okay, to follow the matching concept, you can simply write this statement. Accrual concept implies accounting on earned incomes on earned basis and expenses on incurred basis. Under accrual concept, incomes are recorded on earned basis and expenses on incurred basis, not on cash basis. Not on cash basis. This is also called as mercantile system. Mercantile system. अब ये भी लिखा है नहीं 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 नहीं, वो नहीं लिखना है, खाली accrual system records the transaction इस on. true और false लिखे हम लोग. हाँ, पहले ट्रू और फॉल्स. नहीं मतलब इसका भी नीचे आंसर सब दिया हुआ है, आंसर्स लिखने की जरूरत नहीं है. नीचे पीछे है ना, पूरे क्वेश्चन पेपर के नीचे सोल्यूशन दिया हुआ है. देखो आपको सोल्यूशन भी बता देता हूँ. ये आपका सोल्यूशन दिख रहा है यहाँ पे. False. Accrual concept implies accounting on due or accrual basis. Accrual basis of accounting involves recognition of revenues and costs as and when they accrue, irrespective of their actual receipts or payments. We told them that only in the simple way: time basis, earned basis, incomes on earned basis, expenses on incurred basis. Cash is not important. Whenever you receive or pay cash, that is not important. Own words में आप डिस्कस करके लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम. सॉल्यूशंस दिया हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है, खाली अंडरस्टैंड द मीनिंग कि क्या ट्रू है क्या फॉल्स है. ओके, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आप सॉल्व कर लो बाद में. आगे ट्रू फॉल्स खाली लिखना है तो बाजू में आप मेंशन कर सकते हो. अभी the sales book is kept to record both cash and credit sales. False. 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 Book is used to record only credit sale of goods, right? Sales book we record, it is a subsidiary book that is used to record only credit sale of goods, and cash sale of goods are entered in which book? Cash book. Sale of goods are entered in cash book. Bank reconciliation statement is prepared to arrive at the bank balance. Why do we prepare bank reconciliation statement? To arrive at the bank balance? True, false? False. False. Bank reconciliation statement क्यों बनाया जाता है? To know the reasons of differences between the balance as per passbook and the bank balance as per cash book. BRS is prepared to know or list down the reasons of differences between the balance as per passbook and the bank balance as per cash book. Finished goods are normally valued at cost or market price, whichever is higher. False. False. Lower. Valued at as per accounting standards 2. Finished goods are valued at cost or NRV, whichever is less, due to the principle of conservatism. Due to the principle of conservatism. Reducing balance method of depreciation is followed to have a uniform charge for depreciation and repairs and maintenance together. This one is good. Reducing balance method of depreciation is followed to have a uniform charge for depreciation and repairs and maintenance together. True, false? True. True, true. कुछ याद आ रहा है concept? जब depreciation RBM बता. सर इसमें रीजन क्या लिखा था? वो repairs and वो maintenance देख later years के में रहता है. Sorry. Repairs and maintenance later years में रहता है ना. Lesser in the initial years, more in the later years. तो ये रीजन में आप लिख सकते हो कि ट्रू है, because repairs and maintenance follow a descending trend in their pattern. The repairs and maintenance follow a descending trend in their pattern, means maintenance costs are higher in the lower in the initial years and higher in the later years. Whereas under RBM we charge depreciation as lower amount in the initial years and higher amount in the later years. So depreciation amount and repair cost balance themselves, uniform हो जाते हैं. Okay, तो reason में simple दो statement में mention कर सकते हो. Repairs and maintenance costs are lower in the initial years of an asset, whereas higher in the later years.
And under RBM method, depreciation amount is higher in the initial years, whereas lower in the later years. So they both compensate each other and form a uniform pattern. They both compensate each other and form a uniform pattern. Is that clear? So that reason you can mention. थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसमें, but ठीक है, 2-3 statement में क्या वांदा नहीं. Discount at the time of retirement of a bill is the gain for the drawee. True. False. Maybe. Discount at the time of retirement is the gain for the drawee. True. False. True आएगा, बराबर है. Retirement के वक्त discount or rebate is the gain for the drawee, whereas expense for the drawee. पहले explain कर देने एक line में. Retirement means payment of a bill before the due date. Hence, the drawee is bound to get some rebate. Hence, it is an income for the drawee. Hence, the drawee gets some rebate. It is an income for the drawee. Onwards, you can mention the reason. Okay, वही जो model answer में दिया वही होना जरूरी नहीं है. Withdrawal of cash from the business by the proprietor should be charged to profit and loss account as an expense. False. Obviously false है यार. What it is? It is charged to what? Drawings account. Drawings. So any withdrawal of cash from business for personal use reduces the amount of capital from the business. Hence is treated as drawings. Hence is treated as drawings and not a business expense. Hence is treated as drawings and not a business expense. Partners can share profits, और यहाँ पे आप entity concept भी mention कर सकते हो. Business records only business expenses as per entity concept. So any personal withdrawal will be taken as reduction of capital and hence drawings. Personal expenses are not recorded in business books. Entity concept भी mention कर सकते हो. Partners can share profits and losses in their capital ratio when there is no agreement. False. False. Equal. Equal. Absence of any agreement, लिख देने का. In the absence of any agreement, provisions of Indian Partnership Act 1932 apply, as per which profits and losses must be shared equally and not in the capital ratio. Profit and losses must be shared equally and not in the capital ratio. Receipts and payments account highlights the total income and expenditure. False. False. बराबर है? Receipts and payment doesn't highlight total income and expenditure. Which account highlights total income and expenditure? Income and expenditure. Income and expenditure. Okay. एक reason में वही लिखने का. Income and expenditure highlights the total revenue income and revenue expenditure for the current year. Also, we can write supportive statement where receipt and payment highlights only the cash and bank receipts and cash and bank payments of current year made during the year. Receipts and payment account highlights only the cash and bank receipts and cash and bank payments made during the year. Debenture interest is payable. ये debenture shares debentures में आ जाएगा. उसके बाद हम लोग करते हैं. Fixed assets turnover ratio chapter ही उठ गया है तुमको syllabus में से. So last two you are not having right. Second last है अपना बाकी है, हम लोग कर लेंगे बाद में. Last one तो है ही नहीं, chapter ही नहीं है, उठ गया है syllabus में से. Ratio analysis था पहले. अभी distinguish between money measurement concept and matching concept. ये 4 मार्क वाला आंसर है, ये आपको टेस्ट के लिए नहीं है, ठीक है. Theory आंसर जो आता है 4 मार्क क्वेश्चन, ये पूरा सेकंड क्वेश्चन तीनों मिला के 4 मार्क्स है, ठीक है. तीनों मिला के मतलब छोटा छोटा 2-2 3-3 लाइन में यू कैन एक्सप्लेन ABC बिटवीन मनी मेजरमेंट एंड मैचिंग. याद है आपको मनी मेजरमेंट एंड मैचिंग? टोटल 3 पार्ट मिला के 4 मार्क है ना? हाँ, टोटल 3 पार्ट मिला के 4 मार्क का है. सर इसमें डिस्टिंग्विश में तो सिर्फ मीनिंग ही लिखेंगे ना? डिस्टिंग्विश में मीनिंग और एक और पॉइंट, 2 पॉइंट एटलीस्ट यू कैन मेंशन. मनी मेजरमेंट कंसेप्ट इंडिकेट्स दैट books of accounts, in bookkeeping and accountancy, you record only those transactions which have got monetary value. Flaw is that some valuable assets which like human beings which cannot be converted to money cannot be recorded. इतना मनी मेजरमेंट में बोल सकते हो. टेबुलर फॉर्मेट में इतना है डिस्टिंग्विश? नहीं पॉइंट वाइज लिख सकते हो. 0.12 अंडर मनी मेजरमेंट, 0.12 बिटवीन मैचिंग.
वैसे भी कर सकते हो, टेबल बना के भी 1 to 1 2 कर सकते हो, योर विश। सर हॉरिजॉन्टली इसमें लिखो 3 में से vertically। 2 लिखना होता है। नहीं नहीं, ये तो तीनों है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारा। एनी वन, तो एनी एक टू, एनी थ्री, कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स, 4 मार्क्स। खाली 4 मार्क के लिए 2 कंसेप्ट पूछा है तो थोड़ा और डिटेल में सब मेंशन करना पड़ेगा आपको, 2 मार्क के लिए है ये। थोड़ा 4 मार्क के लिए थोड़ा ये है, ज्यादा कंटेंट हो जाता है। जनरली आपको 1 या 2 या 3 कंसेप्ट आ जाते हैं 4 मार्क के लिए, या तो कोई तो पूरा सेकंड क्वेश्चन 4 मार्क का नहीं है कि खाली ये 4 मार्क यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन ही 4 मार्क का है तुम्हारा, ABC ABC मिला के 4 मार्क, मिला के 4 तो मार्क। तीनों में एक एक लाइन ही लिखने का। तीनों का हाँ, 1 1 2 2 पॉइंट इनफ है, 1 साइड इज इनफ इफ यू फिल। सर हाँ, ट्रू और फॉल्स में जे और के का आंसर क्या है? जे और के ये है वाला तो ना, फॉल्स है। आंसर मैं तुमको बोल देता हूँ, बट जे और के तुमको है नहीं अभी। डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेएबल आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड बट बिफोर द पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड, दैट इज फॉल्स, क्योंकि जब कंपनी पे करती है तो सबसे पहले डिबेंचर इंटरेस्ट पे करती है, फिर आपका प्रेफरेंस डिविडेंड पे होता है, फिर इक्विटी डिविडेंड पे होता है, ऐसा होता है। ये चैप्टर बाकी है ना आपका शेयर्स, उस चैप्टर से। तो के वाला भी फॉल्स ही है ना। और के वाला फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो इंडिकेट द फर्म्स एबिलिटी ऑफ जनरेटिंग सेल्स पर रुपी ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दैट इज ट्रू ना। हाँ। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो इज टर्नओवर अपॉन फिक्स्ड एसेट्स, तो टोटल फिक्स्ड एसेट्स पे आप कितना टर्नओवर कर रहे हो, पर रुपी ऑफ फिक्स्ड एसेट आप कितना टर्नओवर कर रहे हो, दैट इज गिवन बाय फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर, एसेट टर्नओवर, दैट्स ट्रू। बट वो रेशियो एनालिसिस का चैप्टर ही नहीं है, ये ओल्ड सिलेबस है, मतलब ये सीए फाउंडेशन का 4 टर्म अटेम्प्ट में जो सिलेबस था उसमें भी चेंजेस हुआ है, तो ये पुराने सिलेबस का है, तो इसमें ये आपको है ही नहीं। रेशियोज उड़ गया है, रॉयल्टी उड़ गया है, जॉइंट वेंचर उड़ गया है, फिर आपका रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स उड़ गया है, ये 4 चैप्टर्स उड़ चुके हैं, फाउंडेशन में थे पहले भी नहीं है। देन थियोरी में देख लो, डिफाइन रेवेन्यू रिसीट्स एंड गिव एग्जांपल्स, हाउ आर दीस रिसीट्स ट्रीटेड, एक्सप्लेन। अभी ये एक्चुअली ये सिंगल क्वेश्चन भी 4 मार्क का आ सकता है, लेकिन इधर एबीसी साथ में दे दिया है। रेवेन्यू रिसीट्स एंड गिव एग्जांपल, व्हाट आर रेवेन्यू रिसीट्स? Receipts that are received on a day-to-day basis. Receipts that are received on year or day-to-day basis, every day basis in the organization. Recurring receipts. Recurring receipts, they are recurring in nature, they are part of income and expenditure or profit and loss Do not account. have any long-term benefits. Do not have any long-term benefits, correct? Benefit expire within a year, perfect. Or how are these receipts treated? They are credited to either income and expenditure account or P&L account in case of a trading concern. Revenue receipts are credited to income and expenditure account or credited to P&L account in a trading concern. Explain, वही explanation, बस 3 से 4 points enough. Example दे सकते हैं, revenue receipts, sales है, commission है, interest है, okay, donation है, grants है in case of NPOs. Change in accounting policy may have a material effect on the items of the financial statement. Explain the statement with the help of an example. पहले तो accounting policy क्या होता है कल हमने देखा था, explain करो. Okay, principles and rules adopted by the organizations and methods used to follow those rules. Then what should be taken into mind while framing a policy? The prudence होता है तुम्हारा, materiality होता है, substance over form होता है. These things are taken into consideration while framing any policy. Then policy can over or understate asset or liability in the balance sheet. उसका example दे सकते हो. Example, policy of depreciation, simple example, FIM or RBM. So FIM का 10%, RBM 25%, asset value will change, expense will change. So it will have a material impact on the balance sheet, assets and liabilities. ये करके आप दिखा सकते हैं, बराबर है? Stock का भी ले सकते हो, weighted average FIFO. FIFO will give a different answer, weighted average will come different answer. Stock value may increase or decrease, thereby profits may increase or decrease, or your balance sheet assets may increase or decrease. So any change in the policy will affect the balance sheet, assets, liabilities, as well as incomes and expenses. Clear? So that was your theory part. Journal से हम लोग start करते हैं. Let's see. याद है कि नहीं? जर्नल एंट्री जरा फटाफट कर लो, 4 एंट्रीज क्विकली. ओरली करना है. ओरली करना है? हाँ. हाँ सर, चलेगा? फटाफट हो जाएगा. ओरली जम रहा है तो ओरली करें सब लोग.
All of you are fine with that? चलो orally कर देते हैं journal को. Employees had taken stock worth 10,000. Cost price was 7,500 on the eve of Deepavali, and then the same was deducted from their salaries in the subsequent month. Salaries to stock 75. Salaries to purchase is 75. To purchase. Don't use stock now, okay? Salaries to purchase. Salaries to purchase. स्टॉक कभी यूज करने का भी एक ही बारी जब आपका क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू हो जाता है, उसके बाद अगर आप कुछ चेंज कर रहे हो स्टॉक में तो आप स्टॉक अकाउंट यूज करो. उसके अलावा जहां जहां आप गुड्स अकाउंट यूज करते थे सब जगह परचेज. अब आपने कर भी लिया, इन्वेंट्री कर लिया है, सेल और रिटर्न कर लिया है, रेक्टिफिकेशन में आया था नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में स्टॉक. यू हैव एन आइडिया कि वेयर आर यू सपोज्ड टू यूज द स्टॉक account, right? After the balance sheet has been prepared or the stock has been valued, after that only you use stock account. Before that, all purchases. ये concept clear है. और value क्या होगी आपकी 10,000 या 7,500, so I think it will be 7,500. Cost price पे record करना है. Wages paid for erection of machinery. Machine to cash. Machinery to cash. Machinery to cash. 8,000. Machinery to cash. 8,000 capital expenditure. Income tax liability of proprietor 1,700 paid out of petty cash. Drawings to petty cash. Drawings to Petty petty cash. cash. Drawings to petty cash. Perfect. This is for sole proprietor only. यहाँ पे we are assuming it's a sole proprietorship. Okay. Purchase of goods from Naveen of the list price 2,000. He allowed 10% rate discount. 50 rupees cash discount was also allowed for quick payment. Purchase to cash Purchase to cash to discount. Purchase to cash to 18. discount. 100, 1750 and 50. 1,800, 1,750 and 50 rupees. All of you got that? Purchase to cash to discount. Quick payment दे दिया. That's a hint that it was a cash transaction. Capital और revenue पे So जाता है. third वाले का repeat करो ना. Drawings आएगा. थर्ड वाले का ड्राइंग्स आएगा. सोल प्रोप्राइटर के लिए इनकम टैक्स सेपरेटली बिजनेस पे नहीं होता है. इट ऑलवेज इज ओनली फॉर द ओनर. इनकम टैक्स इज अ पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द ओनर एंड नॉट ऑफ द बिजनेस. बाकी सब एंटिटीज पे सेपरेट टैक्स लगता है. पार्टनरशिप पे लगता है, कंपनीज पे लगता है, बट सोल प्रोप्राइटरी पे कोई सेपरेट टैक्स नहीं रहता. सर फर्स्ट वाला क्या है? फर्स्ट वाला सैलरीज टू परचेज. सैलरी टू परचेजेस. गुड्स के जगह परचेज. समझा ना? सैलरी एक्सपेंस डेबिट एंड परचेज. अपना गुड्स गया बिजनेस में, परचेज रिड्यूस हो गया. डायरेक्ट एक्सपेंस कम हुआ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बढ़ गया. जैसे सैंपल्स के लिए देते हो, विड्रॉ करते हो, लॉस बाय फायर है वैसे. अंडरस्टूड? सो दिस कम्स फॉर 4 मार्क्स यूजुअली. तो आपका पैटर्न ऐसे होता है 6 into 2 12 मार्क्स ऑफ ट्रू और फॉल्स, 6 into 2 12 मार्क्स ऑफ ट्रू और फॉल्स, 4 मार्क्स ऑफ थियोरी एंड 4 मार्क्स ऑफ दिस छोटू सा क्वेश्चन which may be rectification or journal or similar one. Okay, just a second. हितेक्षा, मैं तुम्हें फोन करूं जरा लेक्चर में. कैपिटल हो गया. यहाँ तक जर्नल क्लियर है सबको? कैपिटल और रेवेन्यू पे जाते हैं. क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर एज कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. Amount spent on making few more exits in the cinema hall to comply with the government orders. Revenue. Revenue. All of you sorted? Revenue expenditure. No further benefits, no extra benefits. याद है आपको कैपिटल रेवेन्यू? फ्यूचर बेनिफिट्स होना चाहिए. ओके, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होना चाहिए और सम इम्प्रूवमेंट होना चाहिए एसेट में, एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए, अर्निंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए. देन इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. लेकिन आप मरम्मत करवा रहे हो, रिपेयर करवा रहे हो, नेगेटिव को न्यूट्रल कर रहे हो, लॉ सूट को डिफेंड कर रहे हो, दैट्स ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ओके, दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रीजन क्या लिख सकते हो? एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सिट्स डू नॉट हैव एनी फ्यूचर बेनिफिट्स फॉर द सिनेमा हॉल, विल नॉट इंक्रीज द रेवेन्यू इन फ्यूचर, so no additional benefit, hence revenue. Traveling expenses of the directors for the trips abroad for Capex. purchase of capital assets. Capital Capital expenditure. Why? Because expenditure incurred on purchase of fixed assets, the cost of the assets assumed to have long-term benefits. Amount spent to reduce working expenses. Amount spent to reduce working Capital expenses. expenditure. Capital Improves expenditure. efficiency. Improves efficiency, thereby improves revenue or increases profits or decreases costs in future. Decreases cost, reduces costs of future, reduces expenses of future. So future long-term benefits. Amount paid for removal of stock to a new site. Revenue expenditure. Revenue expenditure. No further extra benefits, no additional benefits. Cost of repairs on second-hand car purchased to bring it to the working condition. Capex. Capital expenditure. Revenue.
रेवेन्यू ना. सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदा है भाई, उसको यूजेबल वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए करना ही पड़ेगा रिपेयर्स, नहीं तो चालू कैसा होगा, बोला था ना. बीच में बाद में रिपेयर करवा रहे हो, रेन्यूअल करवा रहे हो बीच बीच में एसेट आने के बाद, तो फिर इट इज रेवेन्यू. नया गाड़ी खरीदने पे खर्चा हो रहा है तो इट्स कैपिटल एक्सपेंस इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ एसेट टू ब्रिंग इट टू वर्किंग कंडीशन एडेड अप टू द कॉस्ट. तो ये थर्ड वाला क्या था? The amounts spent to reduce working expenses are a capital expenditure. For example, conversion of diesel generator into a diesel engine into a petrol engine, or installing a new automatic part in the machine that reduces labor costs. ऐसा कुछ हो गया, okay? Yeah, bringing a new technology that reduces labor costs. Reduces working expenses का मतलब आपने कोई ऐसा expense किया है जिससे आपका फ्यूचर का डे टू डे खर्चा कम हो गया. कोई मशीन लेके आई जिससे लेबर कॉस्ट, मशीन में इम्प्रूवमेंट किया जिससे लेबर का ट्रेनिंग कॉस्ट कम हो गया. एनीथिंग इट मे बी, conversion of diesel to petrol, anything. So it reduces your future expenses. If it reduces your future expenses, obviously it increases your future profits. It has got future benefits. मतलब it's a long term benefit वाला expense. It's a capital expenditure. Got it? Then we move to cash book. Cash book याद है आप लोगों को? What was the format? Receipt side and payment side, subsidiary book. Okay, RNO, VNO, cash bank. याद आ रहा है? To and buy, simple ledger of cash. 3 columns, discount cash bank, discount cash bank, triple column है आपको. ये अभी बनाने की जरूरत नहीं है, ओरली मैं डिस्कस कर रहा हूँ. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक क्या हो जाएगा ये? टू बैलेंस. Balance brought down. कैश इन कैश कॉलम, बैंक इन बैंक कॉलम. पेड इनटू बैंक बोले तो Bank to cash. cash, it's To a type cash. of Contra. contra entry. That's C you have to write. Bought furniture and issued a check. Furniture to bank. Furniture to Furniture to bank. bank. Furniture So to buy bank. furniture, bank column. Buy furniture, bank column. Purchase goods for cash. Purchase to cash. Purchase to cash. Buy purchase, cash column. Received cash from Cash Mohan. to Mohan. Cash to Mohan. To To Mohan. Mohan, cash column. And discount allowed to him 20. Is that discount included in 980 or apart from 980? Apart from. 980. Cash आया तो after discount ही है. So to Mohan, cash column 980, discount column 20. Paid to Amar by check. और cash sales miss हो गया. Oh, sorry. Cash sales. So to sales account in the cash column, right? Cash to sales, paid to Amar by check, and discount Amar receipt. to bank. So Amar to bank to discount. So by Amar column it will be 1450 and discount column it will be 50. At 1450 is after discount. All of you got that? Paid into bank matlab Bank to cash. Again it's a contra entry. To cash bank column by bank cash column. Withdrawn from bank for private expenses. Drawings to bank. Drawings to पे जा bank. रहा है. Drawings to bank. Buy drawings bank column. Received a check from Parul and allowed him a discount. So Bank discount to bank. discount to Parul. So to Parul, bank column 1430, discount column 20 rupees. Is that clear? Cash आएगा. हाँ, cash column में आएगा. Very good. Because next day deposit है. Very good. Bearer check receive किया या फिर कोई order deposit किया तो it will be cash column. Perfect. Deposited Parul's check in the bank. Now it will be Bank to Bank cash. to bank to cash. cash. Contra entry. To cash bank column by bank cash column. Contra entry. Sorted. And do not forget to write narrations in the cash book. Narrations लिखना भूलना मत. अच्छा आगे भी है. Okay. Withdrew cash from bank for office use. Cash to bank Cash column. to bank. Contra. To bank cash, by cash bank column. Pay rent by check. Rent to bank. Bank column. Okay, 800 rupees. Last में balance करना है जैसे ledger को balance करते हो, debit minus credit. Cash will always have debit balance. It's an asset. Bank can have both bank balance or overdraft, asset or liability. Sorted. Narration लिखना भूलना मत in the cash book. Don't forget to write narrations in the cash book. बोलो. Any doubt in this cash book part? Sir, Yeah. एक डाउट है, अगर वो एंडोर्स करते ना Yeah. चेक, तो दोनों पार्टी में कैश में रखने का ना उसको. दोनों पार्टी में कैश. आया तो भी कैश, गया तो भी कैश. एंडोर्स चेक इज ऑलवेज कैश. एंडोर्स मतलब क्या? आया हुआ चेक किसी और को तुमने फॉरवर्ड कर दिया, तो तुम्हारे बैंक तक पैसा गया ही नहीं है ना, तो बैंक को डेबिट करके सेंस ही नहीं बनता है. आया चेक तो भी कैश, गया चेक तो भी कैश. एंडोर्स चेक इज ऑलवेज बेरर चेक भी कैश ना. received is cash, yes, but bearer check received and deposited on the same day is Bank. and bearer check encashed is Bank.
बेरर चेक एनकैश मतलब Cash. जब बेरर चेक आया तभी कैश टू राजेश पास किया, फिर वो बेरर चेक को एनकैश करवाया, चेक देके कैश ले लिया तुम। No entry. नो एंट्री, नो एंट्री। बेरर चेक एनकैशमेंट का देयर इज नो एंट्री। क्या हुआ समझो, चेक आया पहले राजेश से, बेरर चेक आया तो कैश टू राजेश करते हो, यू ट्रीट दैट बेरर चेक एज कैश एंड देन वो चेक अक्रॉस द काउंटर एनकैश करवा दिया, तो वो चेक देके कैश ले लिया, मतलब कैश ही था ना वो चेक, तो कैश फॉर्म में ही था बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो कैश देके कैश ले लिया, कैश टू कैश इज नो एंट्री। हाँ, बेरर चेक डिपॉजिट करते हो बैंक में, बेरर चेक डिपॉजिट करते हो तो इट इज लाइक कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, देन योर एंट्री विल बी बैंक टू कैश कॉन्ट्रैक्ट। तो बेरर चेक रिसीव्ड का कैश टू डेटर आएगा ना? कैश टू डेटर आएगा या कैश टू सेल्स आएगा, चेक डिसऑनर हुआ तो दोनों साइड आएगा ना? दोनों साइड बाय पार्टी, मतलब क्या पहले आया कैश टू अजय, अजय से चेक आया विजय को दिया, विजय टू कैश, बाउंस हो गया वापस कैश टू विजय एंड अजय टू कैश, टू एंट्रीज। कैश बुक कभी देखा नहीं है पेपर में? कैश बुक कभी देखा नहीं है पेपर में, हाँ मेन पेपर में नहीं पूछा है, आई थिंक एक पेपर में था। हाँ एक पेपर में शायद था, एक पेपर में था शायद, एक पेपर में था, बस कम आता है, बहुत कम आता है। जर्नल आता है, रेक्टिफिकेशन आता है, ये सब सेफ साइड के लिए भैया। 4 मार्क वाले क्वेश्चन, जो छोटू सा क्वेश्चन है ना, आपको बोला मैंने थियरी के बाद, 4 मार्क में ये कुछ भी डाल सकते हैं, सब्सिडरी आता है सर? प्रिपेयर्ड रहने का। सब्सिड जो मॉड्यूल में जो है ना, सब कुछ आ सकता है, तो रिस्क नहीं लेने का, उसका दिमाग कब घूम जाए, कब बीवी से झगड़ा हुआ हो पेपर सेट करते वक्त क्या डाल दे क्या पता, वी डोंट नो। ओके, तो वी नो with some probability that these questions are asked very frequently, like BRS, rectification, NPO final account में से एक definitely आता है, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में एकदम कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता है, ये सब जनरल assumption हम लोग कर सकते हैं पास पेपर के ट्रेंड से, लेकिन फ्रीडम है इंस्टीट्यूट को, अब भी नहीं भैया, फाइनल तक, सीए फाइनल तक मॉड्यूल इज द बाइबल फॉर अकाउंट्स, याद रखना। अकाउंट्स के मॉड्यूल और प्रैक्टिस मैनुअल में से कहीं से भी कोने में से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो प्रिपेयर्ड रहने का। और अच्छा ही है यार, ज्ञान बढ़ रहा है, काम आएगा आगे जाके कहीं पे भी। कैश बुक एंड सब्सिडरी बुक सभी बिजनेस का बेस है, बनता ही है, तो लर्न करोगे तो अच्छी बात है। रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन रेक्टिफिकेशन ये जरा लिख के कर दो यार, रेक्टिफिकेशन, राइट इट एंड सॉल्व इट। फॉलोइंग एरर्स आर कमिटेड बाय द अकाउंटेंट ऑफ गीता डाइकेम, there are only 2 transaction, how would you rectify? Before trial balance, after trial balance, after final account, तीनों का रिवीजन साथ में। Wrong reverse correct on one side, rectified entries on right hand side, 3 columns। अभी नरेशन स्किप करो चलेगा, skip the narrations, 3 journals on the right hand side, याद आया? Before trial balance, after trial balance, after final accounts। What was the peculiarity of after trial balance? कुछ था after trial balance में कोई प्रॉब्लम थी? PNL आज PNL adjust, अरे बेटा आफ्टर ट्रायल बैलेंस, सस्पेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बिफोर फाइनल अकाउंट्स, सस्पेंस यूज कर सकते हो नॉर्मल सस्पेंस, हाँ कर सकते हो, एक्सपेंस इनकम यूज कर सकते हो कि नहीं? हाँ कर सकते हो। आफ्टर ट्रायल बैलेंस इज नॉर्मल, नॉर्मल रेक्टिफिकेशन जो हम नॉर्मली फॉलो करते हैं जब कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस एंड बिफोर फाइनल अकाउंट्स, राइट? अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस रेक्टिफाई कर रहे हो तो फिर क्या हो जाएगा? सस्पेंस में नोट आए, तो सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि बना ही नहीं अभी तक, तो फिर उसके लिए क्या लिख देने का? नोट इन द रिस्पेक्टिव अकाउंट्स। याद है वो नोट का फॉर्मेट? टू एरर ऑफ सो एंड सो ऑन द डेबिट साइड ऑफ, On the debit credit side. क्रेडिट साइड पे बाय एरर, डेबिट साइड पे टू एरर, एंड व्हाट आफ्टर फाइनल अकाउंट्स कैन यू यूज सस्पेंस? yes, Suspense, yes. Suspense, yes. After Suspense, final yes. account you can use suspense account, but you cannot use Income and expenditure. exactly, Nominal PNL account. adjustments, तो PNL एडजस्ट। तो अभी हम लोग एडमिशन रिटायरमेंट में भी बहुत एग्जांपल किया है, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को चेंज करना है हमेशा PNL एडजस्टमेंट यूज करना है, बराबर है? PNL एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन द प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, एंड बैलेंस ऑफ PNL एडजस्टमेंट कहाँ जाता है अल्टीमेटली? Capital. वो हमने पार्टनरशिप में किया था, इसलिए हम PSR करके करते थे रिवाल के थ्रू, ओल्ड रेशियो में। ये हम लोग सोल प्रोप्राइटरी का कर रहे हैं तो डायरेक्टली कैपिटल में चला जाए विदाउट एनी रेशियो। कर लो रेक्टिफाई।
सर सेकेंडरी में सस्पेंस नहीं आएगा ना? नहीं, recorded pass through the journal, मतलब recording error. Posted नहीं है, posted, debited, credited मतलब one sided है. सर आफ्टर ट्रायल बैलेंस आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स में सस्पेंस आता है ना? यस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस और आफ्टर फाइनल अकाउंट दोनों में सस्पेंस आएगा. आफ्टर फाइनल अकाउंट्स का मतलब आपने वो मिस्टेक वाला ट्रायल बैलेंस को बैलेंस शीट में एसेट या लायबिलिटी में सस्पेंस डाल के बंद कर दिया. कर देते ना, ट्रायल बैलेंस में अगर सस्पेंस है, डेबिट में तो एसेट डाल, क्रेडिट में तो लायबिलिटी में डाल. सस्पेंसर किसके मतलब उसके बदले आता था? सस्पेंस एरर्स, वन साइडेड एरर्स की वजह से आता था. वन साइडेड एरर्स का गैप की वजह से दैट सस्पेंस यूज्ड टू बी देयर इन द ट्रायल. एक बार वन साइडेड एरर रेक्टिफाई हो गया तो सस्पेंस बिकम्स सर बिफोर ट्रायल बैलेंस का क्या था वो स्टेटमेंट? ऑन द डेबिट साइड ऑफ व्हाटएवर द अकाउंट. हाँ, तो वो सस्पेंस अकाउंट जिधर आता है वो लिखने का या फिर जो नहीं, जो मतलब- एक्चुअल अभी समझो तुम्हारा एंट्री है सैलरी टू सस्पेंस, हाँ तो सैलरी क्या हो रहा है, डेबिट. डेबिट हो रहा है. ऑन द डेबिट साइड ऑफ सैलरी. अच्छा. टू सस्पेंस नहीं लिख सकते ना, क्योंकि सस्पेंस है नहीं, हाँ हाँ तो टू एरर लिखना है. नॉर्मली वुड हैव रिटन टू सस्पेंस, इधर टू एरर. हाँ. सैलरी डेबिट हो रहा है तो ऑन द डेबिट साइड ऑफ सैलरी टू एरर ऑफ पोस्टिंग या कास्टिंग या कमीशन या रॉन्ग अमाउंट. और वही अगर इट इज सस्पेंस टू सैलरी ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ सैलरी. पहले वाले में सेकंड और थर्ड सेम आ रहा है और दूसरे वाले में फर्स्ट और सेकंड सेम आ रहा है. लेट्स सी, देखते हैं. 6 एंट्रीज हो गया सबका. 7 एंट्रीज. एक पीएनएल एडजस्टमेंट टू कैपिटल वाला भी मारना है तीसरे वाले में. कैपिटल टू पीएनएल एडजस्टमेंट बोलेगा नहीं, आपको पता होना चाहिए. पीएनएल एडजस्टमेंट का बैलेंस ऑलवेज गोज टू कैपिटल. जो अभी एडमिशन रिटायरमेंट में रिवैल का बैलेंस यू ट्रांसफर इट टू कैपिटल. झाला करो. क्रेडिट सेल ऑफ 400 to Trivedi. All of you are finished? Shanik Patel. Chalo. Credit sale of 400 to Trivedi and company was posted to the credit of their account. What should be the correct entry? Trivedi to sales. Trivedi to sales. What should be the wrong account? Wrong entry? सस्पेंस टू सेल टू त्रिवेदी. Dash to sales to Trivedi. Wrong entry में don't write suspend क्योंकि तभी पता नहीं था. Dash to sales to Trivedi reverses Trivedi sales to dash and rectified. What if you are doing before trial balance? On the debit side of Trivedi account and on the debit side of on the debit side of Trivedi account. That's it. On the Two debit side error of Commission. to error of commission या to error of posting. How much? 800. And after trial balance तो कर सकते हो. Trivedi to suspense 800. After final account भी कर सकते हो. Trivedi to suspense 800. All of you got that? Purchased
of 420 from Mantri and company passed through the sales day book. Passed मतलब recorded in the book. Journal ही change कर दिया तो पूरा entry उल्टा. Correct entry था purchase to Mantri 420. Wrong हो जाएगा Monthly to sales. Mantri to sales 240. All of you got that? किसी को आया dash suspense इसमें? किसी को doubt? Dash suspense आना चाहिए नहीं आना चाहिए? क्यों नहीं आना चाहिए? जर्नल ही आप जब चेंज कर देते हो परचेज का सेल्स, सेल्स का सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न का सेल्स रिटर्न, एंटायर एंट्री विल टेक दैट न्यू जर्नल का फॉर्म. बोथ टू साइडेड एरर, दोनों अकाउंट्स अफेक्ट हो जाएंगे. सो करेक्ट एंट्री था आपका परचेज टू मंथली 420. रॉन्ग है मंथली टू सेल्स 240. रिवर्स इज सेल्स टू मंथली 240. रेक्टिफाइड इज परचेज सेल्स टू मंथली. नॉर्मल रेक्टिफाइड एंट्री इज परचेज सेल्स टू मंथली. कैन वी डू दिस इन बिफोर ट्रायल बैलेंस पार्ट? Yes. Sales to monthly, yes. 420, 240 and 660. Purchase sales to monthly. Got it? We can write. Can we write this entry in after trial balance part? Yes. Yes. Purchase sales to monthly. Can we write this entry in after final accounts part? No. P&L adjustment to monthly. How much? 660. P&L adjustment to monthly 660 and your ये क्या होगा? Capital to P&L adjustment 660. Last seventh entry. Capital to P&L adjustment 660 because it was a loss, so capital will decrease. Clear? All of you got that? सर फर्स्ट वाले में रॉन्ग एंट्री डैश टू त्रिवेदी टू सेल्स आएगा ना. हाँ, dash to त्रिवेदी to sales. Yes. त्रिवेदी में गड़बड़, पोस्टिंग एरर. सेल्स में होता है ना ये एंट्री, तो वहां से पोस्टिंग एरर है तो ऑलवेज अदर अकाउंट. ये बताया ना पोस्टिंग एरर. सब्सिडरीज के बाद अगर पोस्टिंग एरर मतलब परचेज बुक से अगर कुछ पोस्टिंग एरर है तो वो एडिटर अकाउंट में होगा, परचेज में नहीं होगा कि वहां पे तो टोटल जाता है. सेल्स बुक से अगर पोस्टिंग एरर हो रहा है तो डेटर अकाउंट में पोस्टिंग एरर होगा, सेल्स में नहीं होगा. कैश बुक से अगर पोस्टिंग एरर है तो सेल्स परचेज डेटर क्रेडिट उसमें होगा, कैश और बैंक में नहीं होगा. कैश और बैंक जर्नल एज वेल एज लेजर साइमल्टेनियस पोस्टिंग हो गया. ऑलराइट. सब्सिडरी से अगर पोस्टिंग एरर है तो ऑलवेज इट विल बी देयर इन द अदर अकाउंट, नॉट इन द सब्सिडरी बुक वाला अकाउंट. Now, question 5 BRS. I just want you to do the arrows. Just do the arrows. Statement तो यार easy है, question copy करना है. Arrows कर लो बराबर से. ध्यान से पढ़ो क्या दिया है. नॉर्मल है, ओवरड्राफ्ट है, याद है. पैसा आया, both the books, cash book to passbook, passbook to cash book. Vertical arrows indicate पैसा आया कि गया, balance increased or decreased. And always move from left to right. If it is normal balance, upwards to add, downwards to subtract. It is overdraft, then upwards to subtract, downwards to add. Only the arrow. Finish it off फटाफट. ध्यान से. सर यूजुअली इतना बड़ा आता है. Yes. किया है ना तुमने पेपर का BRS सॉल्व? था ना बड़ा बड़ा. BRS एंड रेक्टिफिकेशन में वसूल लेते हैं वो लोग. सर तो क्या है 10 Normal मार्क है का ना? आता है या 5 मार्क का? 10 marks. हाँ. 10 mark BRS, 10 mark rectification. पक्का. ये ओडी नहीं है ना? नहीं नहीं. Cash book shows 25,570 as the balance at bank ना. तो कैसा होगी? Bank balance. CB to PB balance. CB to PB with a normal balance. One try. CB to PB with a normal balance करो. फिर वो फाइल खुला रखो ना. एक सेकंड में एक्चुअली वन देख.
40876. हाँ चेक कर लो नीचे आंसर सर. सर 6 ट्रांजैक्शन में वो डिसऑनर का एंट्री नहीं हुआ कि चेक इश्यू का ही एंट्री नहीं हुआ? Check issued amount into 1725 returned marked out of date. No entry made in cash book. Dishonor का नहीं हुआ. Issue का नहीं हुआ तो they need to specify clearly. Otherwise हमने किया है ना, check issued and dishonored या deposited and dishonored. Basic assumption cash book में आया है, passbook में नहीं आया. Bank stop payment. Specify करके दिया है, बैंक ने एंट्री कर दिया है तो आप रिवर्स करना पासबुक. Otherwise मत. One 4 2 3 4. I don't know. क्या आ रहा है मनन? 40876. 40876 नीचे भी हाँ। वही दिया है. दिया है ना. बड़ा अमाउंट का प्लस का माइनस हो गया आई थिंक. चेक करो वापस. इसमें पता नहीं चलेगा आपको राइट है कि रॉन्ग है, तो 2 बार ही चेक कर लेना. नथिंग टैलीज. थर्ड वाले में माइनस ट्वाइस अमाउंट होगा ना? लॉस होगा. थर्ड वाले में डेबिट बैलेंस ऑफ 2156 एज ऑन द प्रीवियस डे वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक. ये बताया था याद है. डेबिट मतलब क्या? रिसीट. रिसीट नॉर्मल बैलेंस था 2156 का, उसका बता दिया आपने पेमेंट, तो पेमेंट बढ़ गया तो कैश बुक वेंट डाउन बाय डबल अमाउंट. ये डेबिट का क्रेडिट हो गया तो 4312 से नीचे गया कैश बुक. डेबिट का क्रेडिट हो गया ना, रिसीट का पेमेंट हो गया. क्रेडिट का डेबिट होता तो पेमेंट का रिसीट, तो ऊपर चला जाता. बेसिकली इट इज पेमेंट ओवरकास्ट. डेबिट का क्रेडिट करना मतलब पेमेंट ओवरकास्ट, क्रेडिट का डेबिट करना तो मतलब सर डाउनवर्ड एरो आएगा ना, तो माइनस होगा ना. प्लस कैश बुक नीचे जा रहा है ना, सीबी टू पीबी जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट, प्लस होगा ना. अरे वर्टिकल एरो गोज डाउन. बैलेंस ऑफ कैश बुक विल बी लेस देन द पासबुक बाय. मैंने पूरा उल्टा कर दिया, पीबी टू सीबी ले लिया. कल्याण सर ऐसा खतरनाक मिस्टेक मत करना, 0 हो जाएगा सीधा. सर एक मिनट फोर्थ वाला देखो ना. फोर्थ इसमें Customer अमाउंट of- कौन सा लेना? Customer of Messrs ABC who received a cash discount of 5% on his account of 2000 paid to ABC a check on 24th March. मतलब वो कस्टमर को अपने को देना था 2000, उसको 5% का डिस्काउंट मिलने वाला था. मतलब 2000 पे 5 हाँ 2000 पे 5%, तो मतलब 1900 देना था उसको. The cashier erroneously entered the gross amount in the cash book 2000 ले लिया. 2000, तो कैश बुक ऊपर चला गया 2000 से, लेकिन पासबुक कितने से ऊपर गया तो 1900 से. और अज्यूम करना है कि गया है क्योंकि ओनली वन मिस्टेक इज पॉसिबल, नथिंग इज गिवन, अज्यूम ओनली वन एरर इज पॉसिबल. तो सीबी गोज अप बाय 2000 एंड पीबी गोज अप बाय 1900. सर फाइनल आंसर रिपीट करो ना एक बार. 40876. 40876. नीचे है सॉल्यूशन, चेक कर लो फटाफट जिसका हो गया. सर 8th वाले 30 क्यों लिया? 8th वाले में देखो क्या दिया है. बिल रिसीवेबल फॉर 1530 discounted for 1500 with the bank had been dishonored on 30th March.
बट द एडवाइस वाज रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल। तो ये क्या है, डिस्काउंटेड बीआर डिसऑनर करते थे ना हम लोग, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। तो हम जब बैंक से डिस्काउंट करवाते हैं, जब उसने डिस्काउंट करवाया तब उसको 1500 मिला था, बिल का वैल्यू कितना था 1530 था, क्योंकि उसने जब भी डिस्काउंट करवाया बैंक ने डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लिया 30 और एबीसी को 1500 मिल गया। बट 1-2 महीने बाद जब डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होता है, जब बैंक को डेटर से पैसा नहीं मिलता है, ड्रॉई से पैसा नहीं मिलता है, तो बैंक अपने अकाउंट में से काट लेता है वो पैसे। तो बैंक अपने अकाउंट में से कितने काटेगा, डिसऑनर के वक्त याद है हम लोग बिल अमाउंट लिखते थे, एक्सेप्टर टू बैंक। तो बैंक विल नॉट डिडक्ट 1500 फ्रॉम अस, बैंक विल टेक फुल 1530 ना बिल अमाउंट प्लस चार्जेस, इफ एनी चार्जेस है तो वो भी काट लेगा बैंक। ओके, सो 1530, सो बैंक पासबुक गोज डाउन बाय 1530, लेकिन अपने को पता चला 1 अप्रैल, तो कैश बुक फ्लैट डाउन माइनस 1530। और इसमें 6 में क्या आएगा? A check issued amounting to 1725 returned marked out of date, no entry was made in cash book। तो किसका एंट्री नहीं है, डिसऑनर का नहीं है कि इश्यू का नहीं है, तो डिसऑनर का नहीं है, इश्यू का नहीं, डिसऑनर का। कभी भी कोई भी चेक बाउंस, रिटर्न, डिसऑनर्ड दिया तो बेसिक असम्पशन यही है कि कैश बुक में एंट्री आया, पासबुक फ्लैट। कैश बुक इश्यूड चेक है तो सीबी गोज डाउन, पीबी फ्लैट, डिपॉजिटेड चेक है तो सीबी गोज अप, पीबी फ्लैट। इसमें सीबी नीचे जाएगा ना, इसमें सीबी नीचे जाएगा, पीबी फ्लैट, बाउंस हो गया। डिसऑनर का एंट्री नहीं है, रिवर्सल एंट्री अभी तक नहीं आया, वो आ जाता तो 2 फ्लैट हो जाता। ये सर ये 9th वाला बैंक रिकॉर्डेड अ कैश डिपॉजिट वो वाला, इसमें कैश बुक 1550 से ऊपर जाएगा और पासबुक 1505 से ऊपर जाएगा। यस, परफेक्ट। हम लोग ने कैश तो 1500 पे डिपॉजिट किया है ना, मतलब कैश डिपॉजिट 1550 का है। 1550 का ही क्या है, 1500 ना चाहिए ना 45, उस बैंक ने मतलब कम रिकॉर्ड किया 45 रुपीज। हाँ, तो हम लोग बैंक को ऐसे बढ़ा सकते हैं 45 मतलब। नेट बोल रहे हो? हाँ हाँ, तो नेट तुमको करना है तो बैंक को कम कर दो ना 45 से, पासबुक गोज डाउन बाय 45, ऐसा बता सकते, या कैश बुक गोज अप बाय 45, ऐसा बता सकते। क्योंकि कैश बुक, समझाओ ना। एक मिनट, हाँ, कैश बुक में कितना रिकॉर्ड किया, 1550 रिकॉर्ड किया। हाँ, तो कैश बुक वेंट अप बाय 1550, हाँ, बुक में वही 1505 किया, पासबुक का बैलेंस 1505 से ही बढ़ा ना, 1505 से तो दोनों बढ़ गए, उड़ा दो। तो नेट कैश कैश बुक 45 से ज्यादा बढ़ गया और पासबुक फ्लैट, समझा? 45 रुपीज कैश बुक में ज्यादा दिख रहा है, पासबुक में नहीं दिख रहा है। तो कैश बुक बैलेंस इज मोर देन द पासबुक बाय 45। सर डिपॉजिट तो हम लोग ने तो 1550 किया है ना, बैंक ने मिस्टेक किया है ना, मतलब ये ट्रांजैक्शन में। हाँ हाँ, बैंक ने मिस्टेक किया, राइट। तो पासबुक बढ़ना चाहिए ना 45 रुपीज से, मतलब ऐसा सी, वो वर्टिकल एरोज इंडिकेट करता है बैलेंस। तुमने एक एंट्री कैश बुक के रिसीट साइड पे मारी 1550 की, हाँ, बराबर, कैश बुक में, तो कैश बुक में बैलेंस 1550 से बढ़ गया, राइट। हाँ, पासबुक में भी 1550 से बढ़ना चाहिए था वो बैलेंस, लेकिन नहीं बढ़ा। कितने से बढ़ा, क्रेडिट साइड पे कितना रिकॉर्ड किया बैंक ने, 1505। तो अभी बैलेंस देखोगे दोनों बुक का फाइनल बैलेंस, तो कैश बुक का बैलेंस विल बी 45 रुपीज मोर देन द पासबुक, राइट। हाँ। तो हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कैश बुक टू पासबुक जा रहे हैं। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कैश बुक का बैलेंस 1000 है, तो पासबुक का कितना होगा, 45 रुपीज कम होगा ना, उससे 955 होगा ना। हाँ, तो इसलिए माइनस, दूसरे बैलेंस पे अराइव करने के लिए हम लोग माइनस या प्लस करते हैं, राइट। सर ये थर्ड वाला जो है उसको एरो सिस्टम में कैसे प्रेजेंट करेंगे, वो समझ तो गया कि 4312 ऐड होगा, बट एरो हाँ, तो एरो सिस्टम में बताया ना अभी, क्या क्या हुआ है, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, मतलब रिसीट था, रिसीट तो 0 कर दिया और पेमेंट बता दिया 2156, तो पेमेंट ओवरकास्ट कर दिया, तो कैश बुक वेंट डाउन बाय 4156, 4156 नहीं, 4312 डबल 2156 into 2। रिसीट था 2156 का, वो तो 0 कर दिया और पेमेंट बता दिया 2156 का, तो कैश एरो मेथड में थर्ड वाले में क्या हो रहा है, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक वाज शोन एज क्रेडिट बैलेंस, मतलब आपने रिसीट तो दिखाया नहीं और पेमेंट बता दिया,
तो रिसीट को कम कर दिया आपने 2156 से और पेमेंट को बढ़ा दिया 2156. तो बेसिकली योर पेमेंट इंक्रीज्ड बाय 4312. CB went by 4312, PB flat. ये क्रेडिट का डेबिट होता, तो मतलब पेमेंट को कम करके रिसीट बढ़ा दी, तो मतलब रिसीट ओवरकास्ट हो गई. तो कैश बुक वेंट अप बाय 4312 अगर क्रेडिट का डेबिट होता. सर हाँ, अगर 6 में दिया रहता कि नो एंट्री मेड इन पासबुक, तो पासबुक नीचे आता ना. नो एंट्री मेड इन पासबुक मतलब पासबुक में वैसे भी कोई एंट्री नहीं है, कैश बुक में ही एंट्री है, तो भी सेम ही कर. डिसऑनर है ना. ऐसा दिया होता नो एंट्री फॉर इश्यू एज वेल एज डिसऑनर वाज पास्ड इन कैश बुक. नो एंट्री फॉर इश्यू एज डिसऑनर वाज पास्ड इन कैश बुक, तो फिर दोनों फ्लैट. नो एंट्री कैश बुक तो फ्लैट ही है, पासबुक में क्लियर नहीं हुआ मतलब फ्लैट. सर 6 वाले में पासबुक नीचे जाएगा ना. नहीं नहीं नहीं, कैश बुक नीचे जाएगा. इश्यूड चेक है ना, और फिर बाउंस हुआ है. पर वो लोग ने तो दिया है ना कि नो एंट्री मेड इन कैश बुक. नो एंट्री मेड इन कैश बुक फॉर व्हाट? फॉर डिसऑनर ऑफ चेक. कुछ नहीं दिया मतलब नो एंट्री वाज मेड फॉर डिसऑनर ऑफ चेक. तो कैश बुक नीचे जाएगा. कैश बुक नीचे. सर 8th वाला समझाओ ना. हाँ 8th वाला आर्यन. अब बिल्स रिसीवेबल बोला ना मैंने अभी. बिल्स रिसीवेबल देखो तुम्हारा 1530 का बीआर था, तुमने जब डिस्काउंट करवाया तब बैंक ने तुमको 1500 दिया हाथ में. 30 रुपया डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लिया एट द टाइम ऑफ डिस्काउंटिंग. फिर एक महीने बाद बैंक डेटर के पास जाएगा, ड्रॉय के पास, बिल का पैसा लेने. तो कितना कलेक्ट करने जाएगा? 1530 कलेक्ट करने जाएगा. उसको बिल का अमाउंट चाहिए, डेटर से नहीं मिला तो अपने से काट लेगा. तो अपने से कितना काटेगा? फुल 1530 काटेगा ना, और प्लस चार्जेस, नोटिंग चार्जेस, बैंक चार्जेस कुछ हो गया तो उसके ऊपर और काटेगा. यहाँ पे टोटल पैसा बिल प्लस चार्जेस कटता है, तो बिल तो कटेगा ही. तो बिल कितना है? तो 1530. 1530 से पासबुक गोज डाउन. अपने को अप्रैल में मालूम पड़ा, तो कैश बुक फ्लैट. बोलो हो गया? मिला आंसर्स? कितना आ रहा है? 42076. 40876. 40876. 40876. सर 8th के एरोस कैसे आएंगे? 8th के एरोज में क्या होगा? 1530 से पासबुक गोज डाउन, बैंक ने डिडक्ट किया पैसा. लोग करते हैं ना एक्सेप्टर टू बैंक. ये कैश बुक में नहीं हुआ है, पासबुक ने पहले ही काट लिया, क्योंकि पहला बैंक को पता चलेगा. तो सर वो अभी नहीं किया है ना, बाद में 1 अप्रैल को किया होगा ना. हमने कैश बुक में अपने को 1 अप्रैल को पता चला, हमने 1 अप्रैल को किया एक्सेप्टर टू बैंक. बैंक ने 31 मार्च को ही डिडक्ट कर लिया है ना, क्योंकि बिल वाज डिसऑनर्ड ऑन 30th मार्च को ही कर लिया बैंक. बाद में पासबुक अपडेट होके आई, अपने को बैंक स्टेटमेंट मिला, तब अपने को पता चला, तब हमने कैश बुक में वो एंट्री की. अरे तो अभी फिलहाल खाली हमेशा कभी भी बिल डिस्काउंट हुआ बिल है ना, listen this guys carefully, whenever there is a discounted BR dishonored, कभी भी डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होता है तो सबसे पहला किसको पता चलेगा? अपने को पता चलेगा कि बैंक को पता चलेगा? बैंक को. तो पहला एंट्री विल कम इन द पासबुक. So passbook will go down. By 1530. Cash book also should have gone down, but अपने को पता चला 1 अप्रैल, तो कैश बुक रिमेन्स फ्लैट. नो एंट्री. 1 अप्रैल को आया वो. अगर रिवाइज्ड कैश बुक यहाँ पे बनाने बोला होता अपने को, याद है? रिवाइज्ड कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक. तो एडजस्टेड कैश बुक में ये एंट्री आ जाती, एक्सेप्टर टू बैंक, बैंक में बाय एक्सेप्टर. फिर ये एंट्री तुम्हारे बीआरएस में नहीं दिखती. 31 मार्च की एडजस्टेड कैश बुक में ये आ जाती. इज दैट क्लियर? बोलो आणखी कोई डाउट झाला? आता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मैं पहले ना स्टॉक और ये सबसे पहले तुमको सॉल्व करना है फाइनल अकाउंट. चलो पहले फाइनल अकाउंट जुड़ाओ. 12th क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज. चलो 12th क्वेश्चन, पहले फाइनल अकाउंट जुड़ाओ फटाफट. 15 मिनट्स क्विक. वही एडजस्टमेंट है. अरे अपना स्क्रीन में खोलो यार, नहीं तो 7 एडजस्टमेंट है.
स्क्रीन में ओपन करके देख लो नहीं तो मोबाइल पे। इसमें सेवेंथ एडजस्टमेंट क्या है? ट्राई करो, दिमाग लगाओ, कम ऑन। आगे एग्जाम में क्या करोगे? तो परचेज इंक्लूड सेल्स रिटर्न्स मतलब ऐड करना पड़ेगा ना। लेस फ्रॉम परचेज, लेस फ्रॉम सेल्स। सर अभी ये करना है फाइनल अकाउंट्स। या सर इंक्लूड बोला है ना, तो पहले से ही सब्ट्रैक्ट हुआ रहेगा ना। नहीं नहीं, इंक्लूड मतलब करना था सेल्स रिटर्न टू डेटर, कर दिया तुमने परचेज टू डेटर, क्या करना परचेज है? में डाल। सेल्स रिटर्न का बैलेंस को तुमने परचेज में डाल दिया, जैसे फर्नीचर को परचेज में डाल दिया तो लेस करते हो ना, सेल्स रिटर्न को परचेज में डाल दिया, आया हुआ कुछ। तब लेस फ्रॉम परचेज ऐड टू सेल्स रिटर्न। हाँ, लेस फ्रॉम परचेज ऐड टू सेल्स रिटर्न इज व्हाट? लेस फ्रॉम सेल्स, लेस फ्रॉम परचेज, लेस फ्रॉम सेल्स। करूं डिस्कस ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट? चलो देख लो। प्लांट एंड मशीनरी asset, furniture and fitting asset, bank overdraft liability, capital drawings less from capital, purchases trading debit, opening stock trading debit, wages trading debit, provision for doubtful debts म्हणजे ORD, फॉर्म्युला में से माइनस। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स म्हणजे RFDD. ORFDD, ओल्ड रिजर्व है। ट्रायल बैलेंस वाले सब ओल्ड होते हैं, याद है? एडजस्टमेंट वाले सब न्यू होते हैं, तो लास्ट ईयर का रिजर्व है। फॉर्मूला में से ये भी माइनस हो जाएगा, डिस्काउंट का फॉर्मूला रिमेंबर, तो डिस्काउंट अलाउड प्लस NRFDD माइनस ORFDD। सन्ड्री डेटर एसेट, क्रेडिटर लायबिलिटी, बैड डेट्स आर एक्सपेंस, P&L डेबिट, बैड डेट्स रिकवर्ड, P&L क्रेडिट, सैलरीज P&L डेबिट, सैलरीज पेएबल लायबिलिटी, प्रीपेड रेंट एसेट, प्रीपेड रेंट एक इफेक्ट एसेट, रेंट इज P&L डेबिट, कुछ नहीं दिया था एक्सपेंस अज्यूम करने का। Carriage inwards is trading debit, carriage outwards is P&L debit. Sales are trading credit, advertisement expense है, normal expense, P&L debit. Printing and stationery, P&L debit. Cash in hand asset, cash at bank asset, office expense, P&L debit. Interest paid on loan is P&L debit. Got it? Hello. Purchase include sales return of 2575. क्या करोगे? Purchase include sales return. Less from purchase, less from sales. Sales purchase returns. तो उल्टा, less from sales, less from purchases. Goods withdrawn by Mr. XYZ for own consumption are included in purchases. म्हणजे drawings. तो इफेक्ट क्या होगा इसका? लेस फ्रॉम परचेज ऐड टू ड्राइंग्स। Less from purchase, add to drawings का मतलब less from capital. Wages paid in the month of April for installation of plant amounting to 450 were included in wages account. बोल लो भैया। Wages from से wage less. add to Less machine. from Plant and wages machinery में add. and plant and machinery में add. Free sample distributed for publicity costing 825. Trading credit add to Trading credit, advertisement. Trading credit P&L debit add to advertisement. Create a provision for doubtful debts at the rate of 5%. What is that? Less from RDD and a P&L debit. Less नहीं, P&L less from debtors. Less from P&L. debtors. Less from debtors and P&L debit in the formula RDD and RDD. Provision for discount on debtors is 2.5%. That's NRFDD. NRFDD. तो क्या करने का? Add to discount. Sorry, add to discount वाला formula and sorry, less from debtors. Debtors में से पहले क्या लेस करना है? NRDD के NRFDD? NRDD. Depreciation to be provided on plant and furniture and fittings. क्या करना है? Less from assets Asset and P&L debit. और depreciation कब करना है? At the beginning or at the end? End. At the end, after doing all the adjustments. बराबर है? Debtors पे FBD, NRDD, NRFDD at the end. Assets पे depreciation always at the end. अभी 7th वाला tricky है, चलो दिमाग लगाओ, किसका दिमाग चलता है? दिमाग। Closing stock 1 lakh. हाँ क्लोजिंग स्टॉक बनने का है ना। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट बराबर पकड़ा, लेकिन अमाउंट 1 लाख रॉन्ग है। वो सेकंड वाला पार्ट समझ नहीं आ रहा। आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू। सोचिए, सोचिए सोचिए।
96 आएगा क्या क्लोजिंग स्टॉक? गलत जवाब 64 है। सॉरी 64,000 ओडी से कम कैसा होएगा? तुम्हारा घर पे तुमको लोन चाहिए, तुम्हारा घर 1 करोड़ का है, तुम बैंक में गए, बोला मेरे को 1 करोड़ का लोन दो। बैंक ने बोला अरे भाई तू 1 करोड़ बोल रहा है, तेरा घर का वैल्यू अभी 80 लाख हो गया है, 1 करोड़ है ही नहीं। तो हमने बोला चलो 80 लाख लोन दे दो। बैंक वाला वाह हम लोग 80 लाख का घर पे 80 लाख का लोन दे दे, वाह ऐसा थोड़ी होता है। 80 लाख के घर पे हम लोग कितना लोन देंगे? खाली 80% लोन देंगे, चाहिए तो लो। कोलैटरल इज ऑलवेज मोर देन द लोन अमाउंट। अब सोचो ओवरड्राफ्ट का वैल्यू 64,000 आ रहा है। ओवरड्राफ्ट तो दिया है भाई ऊपर 80,000। तो सेकंड पार्ट में तो ओवरड्राफ्ट को ही एडजस्ट करना है ना? नहीं, ओवरड्राफ्ट तो मिला है 80,000। अपने को ये ढूंढना है कि घर का वैल्यू क्या है, स्टॉक का वैल्यू क्या है, लोन दिया हुआ है 1,20,000 हाँ 1,25,000 आएगा ना। 1,25,000 आएगा। अभी सही पकड़े हैं। तो सोचना कैसे है? पहला पार्ट में क्या दिया? बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक। हाइपोथिकेशन मतलब गिरवी रखा हुआ है। कभी भी आप कोई भी लोन लेने जाते हो ना तो ऐसा ही होता है। आपको चाहिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, आपको चाहिए लोन अगेंस्ट मोटर कार। समझो आपकी गाड़ी है 5 लाख की, आपने बैंक से बोला कि भैया 5 लाख का लोन दे दो। बैंक क्या बोलेगा? पहले तो वैल्यू निकालते हम लोग गाड़ी की, तो वैसे उसने यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू निकाली। तो बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March has been considered as 80% of the real value of stock, deducting 20% as margin. And after adjusting the marginal value, 80% of the same has been allowed to draw as an overdraft. तो ये लोग ने क्या किया यहाँ पे, समझो तुम्हारा स्टॉक का वैल्यू था 1 लाख, तो बैंक ने बोला कि तुमको 80,000 का लिमिट दे रहे हैं तुम। यहाँ पे घर से थोड़ा अलग एग्जांपल है। आपको स्टॉक का वैल्यू सपोज 1 लाख था, तो आपको बैंक ने बोला कि आपको 80% लिमिट का ओवरड्राफ्ट देंगे हम, उतना लिमिट सैंक्शन किया वो लोग। ओके, अभी उसमें से बोला कि आप 80 का 80 अभी पूरा निकाल नहीं सकते, यूज नहीं कर सकते, आप उसका 80% ही यूज कर सकते, आप उसका 80% ही ओवरड्राफ्ट यूज कर सकते, ऐसा बोल रहा है बैंक। देखो रीड अगेन, बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक। बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 17, तो 31st March 17 में ओडी दिख रहा है तुमको, हैज बीन कंसीडर्ड एज 80% ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक, डिडक्टिंग 20% एज मार्जिन। तो कभी भी आप कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटी रखोगे तो आपको पूरा लोन नहीं मिलता, उसका 80, 70, 60% ही लोन मिलता है। घर का वैल्यू 1 करोड़ होगा तो आपको 60 लाख लोन मिलेगा, गाड़ी का वैल्यू 5 लाख होगा तो आपको 3 लाख का लोन मिलेगा, बाकी आपको जेब से डालना पड़ेगा। तो ऐसा स्टॉक का वैल्यू अगर 100 रुपया था तो आपको 100 रुपए का लोन नहीं मिलेगा, 80 रुपीज का लोन मिलेगा। दैट इज फर्स्ट पार्ट। अब 80 रुपीज का सैंक्शन कर दिया वो लोग, 100 रुपए का वैल्यू मान के 80 रुपीज का सैंक्शन कर दिया। उसके बाद क्या दिया? एंड आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू 80% ऑफ द सेम हैड बीन अलाउड टू ड्रॉ एज एन ओवरड्राफ्ट। तो लिमिट जो है वो 80 रुपया है। 100 रुपए के स्टॉक पे 80 रुपए का लोन सैंक्शन हुआ, 80 रुपए का ओडी सैंक्शन हुआ, लेकिन बैंक बोल रहा है कि अभी 80 का 80 आप विड्रॉ नहीं कर सकते अकाउंट में से, अभी आप खाली उसका 80% विड्रॉ कर सकते। तो जो बैलेंस शीट में आपने ओडी दिख रहा है वो विड्रॉवल है ना, एक्सेस विड्रॉवल है। तो वो कितना विड्रॉवल किया है आपने? 100% ओडी ले लिया है कि 80% विड्रॉ किया है? कितने का लिमिट मिला है आपको? नहीं समझ में आया? लाख रुपए का ना? ऊपर जो ओवरड्राफ्ट दिख रहा है कितना है? 1 लाख है 80% ऑफ 20% ऑफ स्टॉक। हाँ 80% ऑफ दैट वैल्यू ऑफ ओडी। देखो आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल ओवर हियर। आपका
स्टॉक का वैल्यू बैंक ने डिसाइड किया है या आपने डिसाइड किया, जो भी है बैंक मान गया 100 रुपए का स्टॉक है, तो आपको बैंक ने बोला हम लोग 80% ओडी सैंक्शन करेंगे, पूरा 100% नहीं करेंगे, 80% ही करेंगे। तो 80% ही लोन मिलेगा आपको ओडी के फॉर्म में, मतलब आपके अकाउंट में से आप 80 रुपए विड्रॉ कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ ओवरड्राफ्ट, दैट इज द मीन। ठीक है, उसमें भी बैंक ने कंडीशन डाली क्या कि अभी आप 80 रुपीज हम लोग लोन का ओडी लिमिट दे रहे हैं आपको, लिमिट, ये ओडी लिमिट आपकी 80 रुपीज कर सकते हो, लेकिन अभी एट प्रेजेंट पूरा 80 रुपीज मत निकालना, इसका भी 80% आप अभी निकाल सकते हो, 80% ही आप अभी ओडी के फॉर्म में यूज कर सकते हो। बाकी हम लोग आपको यूज करना है तो देंगे 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, तभी विड्रॉ करना, एक्सेस ओडी की जरूरत होगी तब। अभी आप 80% ही विड्रॉ कर, मतलब आप 64 रुपीज ही निकाल सकते हो बैंक में से अभी के। तो ये 64 रुपीज is 80,000. So what is 100 rupees? Value of stock. Cross multiply. सर 80% का 80% क्यों हुआ? 80% का 80% होगा ना यार। आपको 100 रुपीज का स्टॉक था, उस पे 80 रुपीज का लिमिट मिला ओवरड्राफ्ट का, तो 80 रुपए का ओवरड्राफ्ट का लिमिट है, ये समझ आया? हाँ। अभी लोन की लिमिट, अभी स्टॉक को भूल जा, अभी लोन कितने का है, लोन लिमिट 80 रुपीज का लोन है, ओडी लिमिट 80 रुपीज का है। अभी बैंक आपको बोलेगा यू कैन यूज एट द प्रेजेंट ओनली 50% ऑफ ओवरड्राफ्ट, यू कैन यूज एट प्रेजेंट ओनली 50%। आपके अभी कितना विड्रॉ कर सकते हो? 40। आपको बैंक बोलेगा 100% विड्रॉ कर लो, 100% लिमिट यूज कर लो, आप कितना विड्रॉ करोगे? 80 रुपीज। आपको बैंक बोल रहा है कि 80% ही विड्रॉ करो, 64। ऊपर जो ओडी लिमिट आपने यूटिलाइज की हुई है वो दैट इज 80,000 rupees, that is 64 rupees. That much OD limit has been given to you. So utilize as of now. अभी भी है 16,000 की लिमिट है, 80,000 में से 64 नहीं, कितना है? हाँ 16,000 की लिमिट, 20,000 की लिमिट है अभी भी, तो वो आप फ्यूचर में कभी भी यूज कर सकते हो। 80% आपने यूटिलाइज किया हुआ, 80,000, 20,000 रुपया फ्यूचर में यूटिलाइज कर सकते हो और विड्रॉ कर सकते हो, नेगेटिव बैलेंस ले जा सकते हो 1 लाख तक। तो समझा कैसे करना है? ये लॉजिक बैठा दिमाग में? इसमें एक और चीज भी आ सकती है, जो मैंने आपको घर का एग्जांपल दिया, पहले आप जो वैल्यू बोलोगे उसमें भी घटा देगा। आपने बोला मेरा स्टॉक का वैल्यू 100 रुपया, बैंक बोलेगा नहीं 100 नहीं है 80 है, तो पहले 80 से बात शुरू होगी, फिर 80 पे बोलेगा हम लोग पूरा लोन नहीं देंगे, 80% देंगे, तो 64 रुपीज लोन देगा। 64 में भी बोलेगा इसमें से विड्रॉ खाली 80% कर सकते हो, तो 64 का भी 80% आप विड्रॉ कर सकते हो। ट्रिपल कैलकुलेशन आ सकता है। तो ये सब सिर्फ उसके लिए है ना, क्लोजिंग स्टॉक के लिए, क्लोजिंग स्टॉक के। सर तो फिर वो लोग इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट करते जो हैं? तुम ओडी यूज करते हो, सैंक्शन अमाउंट पे नहीं, जो ओडी यूज करते हो। बनिया लॉजिक ऑफ इंटरेस्ट एवरी टाइम, कितना पैसा कितने टाइम के लिए यूज किया। आपकी सैंक्शनड लिमिट ओडी की 1 लाख है, बट आपने 80,000 ही यूज किया ना, आपको इंटरेस्ट 80,000 पे ही लगेगा। अनयूज्ड 80, अनयूज्ड 20 पे कुछ नहीं लगेगा। सर वो लास्ट वाला नहीं समझ रहा है, 64 पे क्यों लिया वो? देखो ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, पहले वो बताओ। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? आपको ओवरड्राफ्ट दिख रहा है लायबिलिटी में, उसका मतलब क्या हुआ? बैलेंस से ज्यादा ले लिया है। बराबर, कितना ज्यादा ले लिया है? 80% ना? नहीं, अमाउंट। ओडी का अमाउंट कितना है? 80,000। बराबर है। हाँ। तो 80,000 उठा लिया तुमने बैंक में से नेगेटिव लोन के जैसे। हाँ। तो बैंक ने तुमको क्या बोला है, हमने आपको जितनी लिमिट दी है ओडी की, उसका आप 80% ही उठा सकते हो। तो बंदे ने अभी 80% ही उठाया है, पूरा नहीं उठाया। तो जो 80,000 दिख रहा है ना आपको बैलेंस शीट में, वो 80% ही उठाया है उसने लिमिट। तो एक्चुअल ओवरड्राफ्ट लिमिट इज 100%, विच इज 1 लाख। एक्चुअल ओडी लिमिट आपकी 1 लाख की है। ओडी लिमिट का मतलब क्या है? आपकी एसेट के वैल्यू के हिसाब से आपको लिमिट सैंक्शन होती है, इतने लिमिट तक आप विड्रॉ कर सकते हो, समझा? तो आपको बैंक ने 1 लाख का ओवरड्राफ्ट दिया है, लेकिन उसमें कंडीशन डाला है कि आप 80% ही विड्रॉ कर सकते हो अभी, बाकी 20,000 आगे 3-4-6 महीने बाद करना, अभी नहीं कर सकते, कंडीशन डाल के रखा है। तो एट प्रेजेंट यू कैन विड्रॉ ओनली 80,000, तो आपने विड्रॉ कर लिया। अभी
बैंक ने पूरा स्टॉक का जितना वैल्यू था उतना ओडी नहीं दिया, स्टॉक का जितना वैल्यू था उसका 80% का ही ओवरड्राफ्ट लिमिट दिया आपको। मतलब अगर आपका स्टॉक का वैल्यू था 100 रुपीज तो बैंक ने 80 रुपीज का ही लिमिट सैंक्शन किया और उस लिमिट का भी 80% बोला कि अभी आप विड्रॉ कर सकते समझ गया। ऐसा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सपोज आपकी स्टॉक वैल्यू इज 100 रुपीज, तो लेस 20%, 80 रुपीज is overdraft limit sanctioned और लेस 20% मतलब 16 रुपीज और कम कर दो तो 64 रुपीज इज एक्चुअल अलाउड ओवरड्राफ्ट। एक्चुअल अलाउड ओवरड्राफ्ट मतलब लिमिट का पूरा अभी उधारी ले नहीं सकते आप, 64 रुपीज ही ले सकते हो। तो अगर 64 रुपीज ये आपने ओडी लिया हुआ है जो बैलेंस शीट में दिख रहा है 80,000, if 64 rupees is 80,000, what is 100 rupees x? You cross multiply, so 1,25,000। आपको सीधा जाना, अभी सीधा सोच सकते हो 1,25,000 का 80% करो, मतलब आप स्टॉक लेके आपने बैंक को बोला मेरे पास 125,000 का स्टॉक है, मेरे को ओडी दो 125 का। बैंक ने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी चलेगा, कल उठ के आप भाग गए तो, या हमारा इंटरेस्ट डिफॉल्ट कर दिया तो हमको सिक्योरिटी चाहिए, मार्जिन चाहिए। तो बैंक ने मार्जिन रख लिया 125,000 पे, उसने 1 लाख का ही लोन दिया और उस 1 लाख के लोन पे भी बोला कि अभी पूरा मत लेना, अभी खाली 80% लेना। कोई धंधा अच्छा करे बुरा करे हमको क्या मालूम, पर रुको ही विड्रॉ करो 80%, दैट इज 64 रुपीज ही विड्रॉ कर सकते हो आप। जैसे गोल्ड लोन आपने सुना होगा, मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस, गोल्ड लोन सुना है? तो गोल्ड लोन में आपको, आप अगर 100 रुपए का गोल्ड दोगे तो आपको खाली 55 to 60 रुपीज का लोन मिलता है। 40 रुपीज का गोल्ड आपका बैंक में ऐसे रहेगा एज ए सिक्योरिटी। और क्या इसमें बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स रिकवर दोनों दिया है, तो नेट माइनस करके बैड डेब्ट्स नहीं बेटा, नहीं, दोनों अलग चीजें हैं। बैड डेट्स का मतलब होता है इस साल आपके जो डेटर आपको पैसा नहीं दिए वो लॉस, ठीक है। और बैड डेट्स रिकवरी मतलब पिछले सालों में कोई डेटर को आत्म ज्ञान हो गया और बोला कि मैं यार चलो जाके पैसा देता हूँ, उसने आके आपको पास्ट का रिकवरी का पैसा देके गया वो आपकी, तो ये सिर्फ क्रेडिट में आएगा, वो क्रेडिट में आएगा, अलग इनकम है वो आपका। और बैड डेट्स आपका इस साल का एक्सपेंस है, ठीक है। सर सेकेंड एडजस्टमेंट में सिर्फ परचेज में से लेस और कैपिटल में से लेस ना? ड्राइंग्स है ना, बराबर है। हाँ, उसमें फिर क्रेडिट साइड नहीं लिखने का ना? उसमें फिर क्रेडिट साइड क्या लिखोगे, किसका क्रेडिट साइड लिखोगे? ट्रेडिंग में क्रेडिट नहीं, ट्रेडिंग में क्यों क्रेडिट साइड? ये तो वो है ना, ड्राइंग्स आर इंक्लूडेड इन परचेज है ना। हाँ, तो लेस फ्रॉम परचेज एंड लेस फ्रॉम कैपिटल। तुमको एंट्री करना था ड्राइंग्स टू कैश, तुमने कर दिया परचेज टू कैश। जा, ड्राइंग्स टू कैश का हो गया परचेज टू कैश। गुड्स विथड्रॉन है, कैश विथड्रॉन नहीं है। अरे सॉरी, गुड्स विथड्रॉन तो ड्राइंग्स टू गुड्स पर्सनल यूज करना था, तुमने परचेज टू गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज कर। तो फिर क्या होगा उसका? लेस फ्रॉम परचेज, लेस फ्रॉम कैपिटल। ओके। लेस फ्रॉम परचेज, लेस फ्रॉम कैपिटल। और जो फर्स्ट एडजस्टमेंट का पीआर और ऐसा है ना, परचेज सेल्स रिटर्न, वो एक में से लेस करना है और दूसरे में से ऑलरेडी लेस किया हुआ है कि उसमें से भी करना है? दोनों में से लेस होगा ना। क्या दिया? दोनों में से होगा ना। परचेज इंक्लूड सेल्स रिटर्न। वो सब समझ गया, खाली उतना बोलो कि अगर जो परचेज है ना, उसमें से परचेज रिटर्न जो करना है वो ऑलरेडी किया है कि करना बाकी है? करना बाकी है, क्योंकि आपने सेल्स रिटर्न में सेल्स में डाल दिया था उसको क्रेडिट का। परचेज में से लेस करना बाकी है, तो दोनों में से लेस होगा। चार आइटम्स होगा, लेस फ्रॉम परचेज, लेस फ्रॉम सेल्स, फिर लेस फ्रॉम सेल्स, लेस फ्रॉम परचेज। और ये सर परचेज का नेट अमाउंट क्या आ रहा है? 155,700 आ रहा है।
के बाद 3500 भी लेस होगा ना ड्राइंग्स का। ड्राइंग्स भी है ना सेकंड एडजस्टमेंट। और एक चीज करनी है आपको, फाइनल अकाउंट बनाने के बाद नीचे पढ़ो लास्ट लाइन पे एक और क्वेश्चन डाला हुआ है। दिखा? इतना बड़ा सम करने में कितना टाइम रेक्टिफिकेशन लगता है? सॉरी 15 मिनट 15 मिनट्स। कितना बड़ा सम है? 15 मिनट्स, इसलिए बोल रहा हूँ स्पीड स्पीड स्पीड। इसमें कोई एडजस्टमेंट आ गया तो ऑन प्रॉम्प्ट टू दिमाग काम करना चाहिए एक हाथ। सॉरी एक बार फर्स्ट वाला बोलो ना, परचेज इंक्लूड रिटर्न ऑफ 2575। तो परचेज में तुमने सेल्स रिटर्न डाल दिया है, इसका मतलब क्या कि करेक्ट एंट्री सेल्स रिटर्न की क्या होती है? रेक्टिफिकेशन से सोचो तो सेल्स रिटर्न टू डेटर होती है। हाँ, तुमने कर दिया परचेज टू डेटर पोस्टिंग, परचेज तो कम हो जाएगा ना इसमें, तो अभी क्या हो जाएगा? रेक्टिफाइड। सेल्स बढ़ जाएगा। हाँ नहीं, रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगा? सेल्स रिटर्न टू परचेज। हाँ, तो सेल्स रिटर्न डेबिट हुआ ना, मतलब बढ़ा। सेल्स रिटर्न बढ़ाने का है और परचेज को घटाने का है, क्रेडिट हुआ। तो लेस फ्रॉम परचेज एंड ऐड टू सेल्स रिटर्न। ऐड टू सेल्स रिटर्न क्या है? लेस फ्रॉम सेल्स। सर बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस शीट में क्या आएगा अमाउंट? बैलेंस शीट में ओडी राइट ही है, ओडी को चेंज नहीं करना है। ओडी का अमाउंट कितना है? 80,000। अपने को ओडी का अमाउंट दिया है, अपने को स्टॉक ढूंढना है। अपने को ये पता है कि कितना ओडी है। यहाँ पे मैंने बताया ना तुमको, ये देखो, ये वर्किंग नोट दिख रहा है यहाँ पे 64 रुपीज अपने को जो विड्रॉ करने की लिमिट मिली है वो 80,000 है। ओडी को टच मत करना, उधार उधार ही है, 80,000 का मिला है। अपने को ढूंढना है कि कितने का स्टॉक था, तो अभी 80,000 का विड्रॉ करने मिला ओडी। स्टॉक वैल्यू ढूंढना है। ये क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट देना 125 ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट्स। ओके ओके गॉट इट? वो पूरा एडजस्टमेंट खाली क्लोजिंग स्टॉक ढूंढने के लिए था, सीधा सीधा सर्व करके नहीं दिया कि भैया क्लोजिंग स्टॉक 125। मारो दो इफेक्ट, घुमा के दिया है थोड़ा। सर फर्स्ट में तो दोनों में फिर से भी इफेक्ट आएगा ना, लेस फ्रॉम सेल्स लेस फ्रॉम परचेज। यस, फर्स्ट में लेस फ्रॉम सेल्स लेस फ्रॉम परचेज लेस फ्रॉम परचेज लेस फ्रॉम सेल्स। परचेज में से भी दोनों लेस, सेल्स में से भी दोनों लेस। सर इसका 150 टू 200 आ रहा है नेट परचेजेस, वो ड्राइंग्स भी माइनस करके। हाँ 152200। 152200। इस सब में एक लास्ट एडजस्टमेंट ही ट्रिकी था आई थिंक, बाकी किसी में खास इश्यू नहीं आना चाहिए। है किसी को? बोलो। Anyone who is finding difficult or did not understand any other adjustment? लास्ट वाले में अभी कोई डाउट है किसी को तो प्लीज आस्क। बैंक ओवरड्राफ्ट वाला पार्ट समझा? 80% वैल्यू का आपको ओडी लिमिट मिला है और उसका भी 80% विड्रॉ कर सकते हो। यस तीर्थ? लोग को बैंक ओडी से क्लोजिंग स्टॉक ढूंढना है ना, मतलब? हाँ, बैंक ओडी से क्लोजिंग स्टॉक ढूंढना है। 80,000 80% ऑफ लिमिट है और लिमिट 80% ऑफ स्टॉक है। डेटर का आउटर कॉलम 111150 आ रहा है। हाँ तो टैली हो गया। टैली हो गया? हो गया सर। इसका हो गया या रोहन का हो गया, नमन का भी हो गया। नमन टैलीड? 267250 आया।
चेक करो नीचे सॉल्यूशन लिया है 267250 चेक द सॉल्यूशन नीचे वेरीफाइड स्क्रॉल डाउन नीचे ही है सॉल्यूशन चेक करो इसका हो गया है तो कॉपी मत करना कंप्लीट करो आराम से फिर चेक करो परचेजेस का फाइनल अमाउंट क्या आ रहा है? 15200 समथिंग क्या था 1502 152200 15200 आर्यन शाह फिनिश्ड करो उसके बाद रेक्टिफिकेशन एंट्रीज भी पूछा है अपने को लास्ट पॉइंट पे जर्नल एंट्रीज भी है आर्यन का हो गया आर्यन शाह चालू है आर्यन शाह का सिली मिस्टेक होता है पेपर्स में हाँ सर क्यों नहीं होना चाहिए ध्यान से करो रीचेक नहीं करते क्या सर फिर वो कंटाला आता है तो छोड़ देता हूँ। कंटाला देखो कंटाले में वाई आर यू लूजिंग अननेसेसरली व्हाटएवर मार्क्स यू कैन गेट टाइम है पेपर कंप्लीट हो गया रीचेक करने का यूटिलाइज इट इसमें आपको स्टॉक का वर्किंग नोट करना है एग्जाम में भी ऐसे एक आध एडजस्टमेंट ही आएगा ना ट्रिकी मतलब जनरली फाइनल अकाउंट्स में आता नहीं है आपने चारों फाइनल अकाउंट सॉल्व किया है ना पेपर का जमा था ना आपको हाँ मतलब लगा था कुछ ट्रिकी कभी ऐसा होगा ना कि कोई एडजस्टमेंट है टफ और नहीं क्रैक हो रहा है और अगर डाउटफुल है अगर हो भी गया तो उसको छोड़ के बाकी का पूरा सम कर दिया तो नहीं वैसे मत करो क्योंकि जो सब रॉन्ग है रॉन्ग वो करना ऐसा वैसे भी रॉन्ग ही है उसका रॉन्ग करोगे तो मार्क्स गया और छोड़ दोगे तो भी हाँ टाइम तो मतलब करके उसमें कम मार्क्स मिलेगा कि वो छोड़ देंगे और दोनों वैसे में कम marks सेम ही लॉजिक है ना यार वो रॉन्ग है या फिर नहीं किया ओमिट कर दिया तो भी रॉन्ग ही है उल्टा ओमिट कर दोगे तो ज्यादा चांस है कटने का लिख के आओ सब रॉन्ग अमाउंट पे टैली होगा नहीं तो उसमें क्या एडजस्टमेंट में एक इफेक्ट किधर राइट गया तो शायद एक प्रॉफिट राइट आ जाए
आपने 4 पेपर का फाइनल अकाउंट एनपीओ किया है ना, तो क्या ट्रिकी था, एक एनपीओ ट्रिकी था, तो मैं मानता हूँ क्वेश्चन एक वियर्ड तरीके से फ्रेम था मई 2019। बाकी ऐसा कुछ मैनेजेबल रहता है। ये सब जितना ट्रिकी पोर्शन रहता है ना, ये सब ये लोग मॉक टेस्ट और आरटीबी में डाल देता है। खतरनाक खतरनाक सब। फाइनल पेपर्स यू हैव ऑलरेडी डन। ओके हो गया टैली। में किस में रहता है? परचेजेस में से पहले सेल्स रिटर्न सब्ट्रैक्ट होगा ना, सेल्स रिटर्न, फिर परचेज रिटर्न और फिर ड्राइंग्स। फिर ड्राइंग्स। 3 152200 आ रहा है ना। यस 152200। चलिए इधर आंसर में तो कुछ अलग दिया है। 151375। एक सेकंड, परचेजेस लेस परचेज रिटर्न, और वो लोग ने नेट अमाउंट लिया है क्या? ड्राइंग्स किधर गया? ड्राइंग्स भी नहीं है, सेल्स रिटर्न्स भी नहीं है। मिस्टेक किया, मिस्टेक। परचेजेस का अमाउंट 153100 नहीं है, कुछ और ही है, तो शायद एडजस्टेड ही रहेगा। हाँ यही है ना, परचेजेस का क्या है? 1,60,5220। अरे ये लोग ने सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न से डायरेक्ट एंट्री मारा, हमने सेल्स परचेज से किया। ठीक है, ये लोग ने नलिफाई कर दिया ऊपर वाला, रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड के थ्रू किया है। दैट्स ओके, करेक्ट आइदर वे। सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न के थ्रू किया है, हम लोग सेल परचेज के थ्रू, बराबर है। फाइनल तुम्हारा जीपी वगैरह सब सेम आएगा, जीपी पीएनएल बैलेंस शीट। जम रहा है, बाकी सब हो गया टैली? बोलो आबा, यश, निष्ठ, निकिशा, जनीशा, आर्यन, भानुशाली, तनय सावंत, तनय रक्षित। वीडियो ऑन कर लो, चलो फटाफट। हो गया टैली, हो गया? करूं रेक्टिफिकेशन एंट्रीज? लिखो रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, नेक्स्ट जर्नल ड्रॉ कर लो, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, चलिए। अभी इधर रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पूछा है अपने को। रेक्टिफिकेशन मतलब गलत गलत जो कर दिया उसको रेक्टिफाई करना है। मैं एडवाइस करूंगा पूरा ही मार दो, ऑल 7 जर्नल एंट्रीज, क्योंकि बाकी भी यू कैन कंसिडर देम एज एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन। ठीक है, तो हाईलाइट इज दैट जितना एडजस्टमेंट है सबका ही जर्नल एंट्रीज मार दो, झंझट नहीं, एक्स्ट्रा करके आओगे टेंशन नहीं है। रेक्टिफिकेशन में आइडियली तो जो रॉन्ग हुआ उसको रेक्टिफाई करने की एंट्रीज करते हैं, बट जो नहीं हुआ वो कंप्लीट ओमिशन भी एक टाइप का एरर ही है, वैसे पकड़ के चलो। ठीक है, कर दो रेक्टिफाई। पहले वाले का क्या होगा? रेक्टिफिकेशन एंट्री परचेज इंक्लूड सेल्स रिटर्न 2575, क्या होगा? सेल्स रिटर्न्स टू परचेज। सेल्स टू परचेज हमने डायरेक्टली सेल्स से किया है ना, तो सेल्स टू परचेज कैन डू सेल्स रिटर्न टू परचेज या सेल्स टू परचेज, डायरेक्टली सेल्स से किया है। सेल्स टू परचेज या सेल्स रिटर्न टू परचेज 2575, सेल्स टू परचेज या सेल्स रिटर्न टू परचेज 2575।
Narration is same. Question karo and now rectified. Sales return included in purchase, now rectified. Sales included in purchase return, तो क्या बन जाएगा आपका? Sales included in purchase returns will be. Sir, but हम sales return subtract क्यों करते हैं? Ideally add होना चाहिए ना? Because the goods will already have been subtracted ना? परचेज में से कैसा? परचेज में तो ऐड होगा ना. परचेज अगर डेबिट बैलेंस, वो गुड्स खरीदा हुआ बता रहा है, डिनोट कर रहा है. तो गया हुआ गुड्स है, सेल वो डिनोट कर रहा है. तो आपका अगर सेल्स रिटर्न्स हुआ है तो गुड्स आया है बिजनेस में, तो आपने परचेज में ऐड कर लिया है ना, तो बढ़ गया परचेज, वहां से लेस कर. समझा? इंक्लूडेड इन परचेज मतलब वो ऐड हो चुका है. सिमिलरली परचेज रिटर्न इंक्लूडेड इन सेल्स मतलब वो सेल्स में ऐड हो चुका है. तो क्या होगा? पहला वाले का एंट्री विल बी सेल्स या सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज, और दूसरे वाले का क्या होगा? सेल्स इंक्लूड परचेज रिटर्न्स. तो क्या करो? सेम एंट्री सेल्स टू परचेज कर सकते हो या फिर सेल्स टू परचेज रिटर्न्स. सेल्स टू परचेज रिटर्न्स 1725. सेल्स टू परचेज रिटर्न्स 1725. सेल्स टू परचेज रिटर्न्स 1725. सेल्स टू परचेज भी चलेगा या सेल्स टू परचेज रिटर्न्स भी चलेगा. Sales return included, sales included in purchase return now rectified. Sales included, purchase return included in sales now rectified. Sorry, purchase return included in sales now rectified. And sales to purchase या sales return to purchase, दूसरे वाले का sales to purchase या sales to purchase returns. Goods withdrawn by Mr. X for personal use included in purchase. What will be the rectified entry? बोलो. Drawings to purchase की capital to purchase. Drawings to purchase. Drawings to purchase. Capital to purchase is also fine. Capital to purchase भी लिख सकते हो. Drawings to purchase या capital to purchase. That will be 3,500. Drawings to purchase या capital to purchase 3,500. Wages paid for the month of April. Installation of plant included in wages. क्या करोगे? Rectified entry. Machine Machine to wages. Machine to wages. Machine to wages. Ideally आपके rectified entry यहाँ पे खत्म हो जाता है. But I'll advise that कर लो सबका सब. Free sample distributed for publicity. क्या होगा entry? What will be the entry for this? advertising to purchases. Advertising to purchases. Advertising to purchases. ये भी purchase से less होगा. ये है ना? Advertising to purchases 825. Advertising to purchases 825. What is the entry for creation of NRDD? Remember? RDD and RDD2 debtors. No. RDD to PNL. No. PNL to RDD. PNL to RDD and PNL to NRFDD. कुछ भी मिस्टेक कर रहे हो. अरे डेटर्स में से थोड़ी वो तो माइनस करने के लिए फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहे हो, प्रेजेंटेशन के लिए. एक्चुअली आरडीडी इज अ लायबिलिटी. बैड डेट्स का एंट्री इज बैड डेट टू डेटर. आरडीडी, एनआरडीडी, एनआरएफडीडी का एंट्री इज पीएनएल टू आरडी. पीएनएल कम हो रहा है, लायबिलिटी बढ़ रहा है, रिजर्व क्रिएट कर रहे हो, एंटिसिपेशन. सो पीएनएल टू आरडीडी एंड पीएनएल टू एनआरएफडीडी. पीएनएल टू एनआरडीडी एंड पीएनएल टू एनआरएफडीडी. डेप्री का क्या होगा एंट्री? अनरिकॉर्डेड डेप्री का एंट्री क्या होगा? Depri to asset. डेप्री टू फर्नीचर टू मशीन. डेप्री टू फर्नीचर टू मशीन. डेप्री टू फर्नीचर टू मशीन. आरडीडी का क्लियर है दिमाग में सबको? आरडीडी रिवर्स करते हो तो आरडीडी टू पीएनएल. रेक्टिफिकेशन में कर देते ना, कभी कोई एंट्री में डेटर अगर क्रेडिट हो रहा है तो आरडीडी रिवर्स कर देते हैं. Creation of RDD is PNL to RDD, remember that, and PNL to NRFDD. Depri ka Depri to machine to furniture. And last one, closing stock. What is the entry for closing stock? बताओ. Stock to trading. Stock to trading. Stock to trading. 125,000.
Stock to trading 125,000. उड़ाइए last question, sum number 15. सर थियरी करते हैं ना डिस्कस? वेट, कौन सा थियरी? कुछ भी रहेगा ना। आज थियरी नहीं है, आज थियरी नहीं। तो कोई छोटा सा ले लो। 15वां सम हाँ, बड़ा है। चलो चलो छोटा सा ले लो। एक्चुअली एनपीओ के बाद भी एक छोटा सा सम है, आई वोंट डिसअपॉइंट यू। चलो नहीं सर, अभी एनपीओ बोल करो दो। एनपीओ नहीं सर, हो गया। फाइनल सीधा अकाउंट वही एनपीओ लो। साथ में नहीं जाता कभी। सर ये रिवीजन तुमको लेक्चर है। तुमको मालूम है रिवीजन लेक्चर 2.5-3 घंटे का होता है, तुमको खाली 2 घंटा बिठा रहा है। चलो कल से 15 सम बहुत बड़ा है सर। एनपीओ कम ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट। सर लंच करना है, फिर जल्दी डिनर सर करना है। ऐसे मजा नहीं आएगा दिमाग में करने नहीं के लिए। आता। सर आज 14 से छोड़ 2 दो, बजे से घूमने बैठे मिलेगा। हैं, खाना नहीं खाया, बस में नहीं जाता खाली। तब सर तपस्या पर्यूषण में करने आप का, सोचो तपस्या। 2-2 बजे तक लेक्चर बैठते, फिर पर्यूषण खाने में का, फिर तब 5-6 करो, बजे बुद्धो वापस बंदा खाने है। का। सर 2 बजे लंच करके कुछ ना वापस कुछ लगता है 5:30। सर आज छोड़ दो। ए चुप, कम ऑन। होमवर्क कर रहे थे। दुनिया में लास्ट थोड़ा नहीं तो मानो। गाइस कम ऑन यार, रिवीजन है, मस्ती मत घर करो। के लिए कुछ तो छोड़ो। अरे घर के लिए है, पीछे है, घर के लिए भी है। 15 सम करो फटाफट। चलो मैं एक्चुअली एक और सम करवाने वाला था, बट अभी वो नहीं करवा रहा हूँ, ये लास्ट है, ठीक है। 15 सम एनपीओ को इज्जत देने का। एनपीओ फाइनल अकाउंट बड़े चैप्टर, रिस्पेक्ट। चलो किसी का है 28 भवी तपस्वी? आप करने का देते हो, पूरा टाइम होमवर्क ही तो करते रहते हैं, किधर करेगा? अरे तो 28 में क्या करने है, खाने का नहीं है भाई। थक जाएगा ना सर, फिर पूरा 28 कैसे कर पाए? पूरा दिन बड़े रहेंगे तो थोड़ी ना चलेगा। ओके उसका फिर कुछ भी बोलो कोई ना, है? एनपीओ बाद में करते हैं यार। उपवास है किसी का? ताता बद्दा। सर प्लीज ये नहीं करना, दूसरा सम दे दो, पर एनपीओ अभी सर नहीं बोर हो करना रहा है। अरे बेटा प्लीज यार, अरे इम्पोर्टेंट है, कम ऑन, लास्ट सम है, कम ऑन। कल करेंगे ना। टाइम, अरे नहीं, कल के लिए फिर दूसरा पेपर आएगा। अरे यार कम ऑन, आलस मत करो। सर आप होमवर्क दो, प्रतिक्रमण में ना बैठने का रीजन मिल जाएगा। ए भाई, मेरे पे बिल फाड़ो तुम लोग। प्रतिक्रमण रोज करने का, रोज 7 दिन नहीं करने का। सर आप जो भी करते हो होमवर्क कम do दो it तो रोज twice. करेंगे हम लोग। I am of that मैं अभी तक एक भी नहीं किया। हाँ